Good morning, my dear student. Today we will continue your class 12th history, chapter 10, Colonialism and Countrysides. My dear student, in this chapter, today we will discuss the topic Bengal and Jamidars. If you would remember my previous class, where I have discussed a story, an auction in Bardhaman, where we have read that the Jamidars, why they not taking interest in their Jamidaris? Why they easily auctioned their Jamidaris? We have seen there that the purchaser, he was also appointed by the Jamidars to purchase that Jamidaris. And when the collector discovered a strange twist to the tale, that many of the purchasers turned out to be the servant and agent of the Raja or Jamidars, had brought the lands on behalf of their master. Over 95% of the sale at the auctions was fictitious. The Raja's estate had been publicly sold, but he remained in control of the Jamidars. That is the very strange matter. We have discussed this issue in my previous video when I taught you the topic and auction in Bardhaman. We have also discussed the next topic, the problem of the unpaid revenue. What was the problem which faced by the Jamidars? Why they not pay revenue in proper time? What was the rule? Where I have discussed the permanent settlements, Istimari settlements. I will discuss also that settlements in the very clear way after completing this topic. Dear student, the problem of unpaid revenue that was based on the condition of the Bengal. When the permanent settlements implemented in Bengal, that time was 1773. If you will see the climatic condition of Bengal, in 1770s, the rural economy in Bengal was in crisis, with a recurrent famine and declining agriculture outputs. That was the main reason which they faced, even Jamidar faced. That's why they helpless to pay the proper tax during time. If you will see that chart, the problems of the unpaid revenue, the first reason that was the recurrent famine. Second problem that was the decline of agricultural outputs. And fourth, the fixed rate that was fixed by the British officials, that was very high. Their amount was high. And last, that is the very important things, that Jamidars, they were not taking interest in the investment in agriculture. If they are taking interest, we have also discussed in my previous class the story of Bardhaman and how the Jamidars not taking interest in their Jamidaris when that was auctioned by the British ruler. Because if you would remember my previous class where I told you that what was the problem. Actually, the purchasers who came to the auction, that estate were sold to the higher bidder, the purchaser, they were basically the agent of the Jamidar. They purchased their property indirectly, the name of the Jamidar. What I want to tell you here, that indirectly Jamidar, who was owner of their estate, but after auction, the name, क्या होता था, नाम किसका था? The name which was mentioned in the official documents, their agents, their servants, and such type of others. That is the very strange matter in Bengal. When the collector of the Bengal, the collector of the Bardhaman, the district, who
discovered that problems, जब इसने इस चीज को देखा, collector soon discovered the strange twist to the tale. Many of the purchasers turned out to be servant and agent to the zamindars and rajas who had bought the land. Sale at auction was the fictitious. The Raja, it means the Jamindar's estate had been publicly sold, but he remained in control of his Jamindars. What I tell you, that is the strange matter. जमींदार की जमीन ऑक्शन हो जाती थी, फिर भी जमींदार के पास उसके प्रॉपर्टी राइट इनडायरेक्टली बने रहते थे. वाई? बिकॉज द परचेजर्स, हु आर द परचेजर्स? परचेजर्स वर द एजेंट ऑफ द जमींदार, एंड दैट इज द प्रॉब्लम. एंड सेकेंड थिंग्स, what was the problem to unpaid revenue? Actually here you have to understand the actual problem. Why the Jamindars unpaid revenue on the proper time? What was the reason behind that? No doubt to say that when the Jamindari system, when the permanent settlements was established in Bengal, whole Bengal, not only in Vardhaman, the some rules that was imposed by the British government. The rules, the Britishers think in their mind that we have to fix a revenue rate, and year by year, without any hindrance, without any practice, the revenue submitted in the national treasury. And one more thing is that if we would give the right of ब्रिटिश रूलर्स, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऐसा सोचते थे कि जब हम ये अधिकार जमींदारों को दे देंगे परमानेंट सेटलमेंट्स के अकॉर्डिंग, जमींदारी सेटलमेंट्स के अकॉर्डिंग, जमीन पे जो मालिकाना हक था, इट मीन्स रेवेन्यू कलेक्शन का जो हक था, वो अगर हम जमींदारों को दे देते हैं तो जमींदार अपनी जमीन में इन्वेस्ट करेगा, और जमीन इन्वेस्ट करने के बाद जमीन की फर्टिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जमीन की से होने वाली इनकम में वृद्धि होगी. ऐसा ब्रिटिश ऑफिशियल सोचते थे. लेकिन जस्ट अपोजिट व्हाट हैपेंड, ब्रिटिशर्स नॉट व्हाट, दे वर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट इन फार्मिंग लैंड. खेती योग्य जमीन में जमींदार इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था. इवन दे वांट व्हाट, द मेनी मोर रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स, and the exploitation rate of the Jamindar, that was very high if you will read the colonial era and the peasants condition. I hope you have seen a movie Mother India. You have to watch that movie, and when you watch that movie you can easily understand the condition of the peasants during colonial era. How the peasants, they were exploited by not only the officials but also money lenders, but also the traders, and every steps he was exploited by them. That was the condition. And second thing is that if you will see this chart, the problems of the unpaid revenue, according to your that topic, that there was the four main reason due to that the problems unpaid revenue it was faced by the British rulers. First problem, the current what, the recurrent famine, which was what, a recurrent famine that came in Bengal during 1770. And second things, after that, declining the agricultural outputs. Third, the fixed rate, the revenue, I mean to say that the amount of the revenue that was fixed by the British government in the permanent settlements. The rate was fixed. This rate, the fixed rate, was very high. And
ड्यू टू डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर आउटपुट्स, ड्यू टू रिकरेंट फेमाइन, द प्रोडक्शन that was decreases in Bengal and Bardhaman also. Due to that, they faced the problem. And fourth point that is very important, which you have to understand, what the jamidars, what I told you in the previously, कि मैंने कहा आपसे कि जमींदार ऑफिशियल्स ऐसा सोचते थे कि जमींदार क्या करेगा, जमींदार को जब हम जमीन पे रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार देंगे, जमीन को मालिकाना हक देंगे, तो जमींदार अपनी जमीन पे इन्वेस्ट करेगा और उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बाद इनकम बढ़ेगा और इससे विदाउट एनी हेजिटेशंस कंपनी को प्रॉपरली रेवेन्यू कलेक्शंस आराम से होंगे. बट इट वॉज वेरी स्ट्रेंज दैट जमींदार दे वर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट इन द फार्मिंग लैंड. खेती में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे. दैट इज द मेन रीजन. Officials failed that the agriculture, trade and revenue resource of the state could all be developed by encouraging investment in the agriculture. According to British officials, they felt that without development in our agriculture field, the trade, not only trade, but also the everything which is related to trade, the revenue resources, the necessary needs that cannot be properly increased in market, उस तेजी से ज्यादा संख्या में मार्केट में नहीं आ सकती थी. दैट वाज द मेन प्रॉब्लम. ऑफिशियल एक तरफ सोचते थे कि अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ने के साथ साथ उस रिसोर्स में भी वृद्धि होगी जो मार्केटिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं. जस्ट अपोजिट व्हाट, ऐसा हुआ नहीं. बिकॉज ऑफ द जमींदार राजास, दे वर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन फार्मिंग लैंड. दिस कुड बी डन बाई securing rights to property and permanently fixing the rates of revenue demand. Britishers provide what? The property rights. किसके लिए? जमींदारों को उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए. ये करने के लिए कि जब प्रॉपर्टी राइट दे दिया जाएगा तो वो जमीन पे प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करेंगे और डेवलप होगा. डिमांड की रेट फिक्स कर दी गई. इट मीन्स रेवेन्यू रेट फिक्स कर दी गई. If the revenue demand of the state was permanently fixed, then the company could look forward to regular flow of revenue. The company, that was very clever person. It means the Britishers, they were very clever. They decided in their mind that if we permanently property gave किसको, जमींदार को या राजा को, then what the result होगा, the revenue demand of the state was permanently fixed and the company क्या होंगे, कंपनी को एकदम प्रॉपरली रेवेन्यू मिलता रहेगा. कंपनी could look forward to regular flow of the revenue, while entrepreneurs could feel sure of the earning a profit from the investment. Since the state would not siphon it off by increasing its claim, the process officials hoped would lead the emergence of class of yeomen, farmers and rich landowners who would have the capital and entrepreneurs. I mean to say that I want to teach you कि किस तरीके से बदलाव हो रहे थे. कह रहा कि एक तरफ तो कंपनी ये सोच रही थी कि खेती में वृद्धि होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. इट मीन्स खेती में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी से इनकम बढ़ेगा और इनकम से कंपनी को मिलने वाली रेवेन्यू जो फिक्स है वो प्रॉपर फ्लो उसका होता रहेगा. अगर जमींदारों को क्या दिया जाएगा, प्रॉपर्टी राइट्स दे दिया जाएगा, तो क्या होगा, तो जमींदार इसमें इंटरेस्ट लेगा. यदि राज्य को, यदि स्टेट को रेवेन्यू की जो डिमांड है, फिक्स डिमांड, अगर वो निर्धारित कर दी गई तो कंपनी को नियमित प्राप्ति की आशा, मतलब कंपनी को जो रेवेन्यू मिल रहा है
वो प्रॉपरली उनको मिलती रहेगी और गवर्नमेंट ऐसा एक्सपेक्टेशन रख सकता है कि रेवेन्यू प्रॉपरली उनको मिलती रहेगी। लेकिन हुआ क्या, व्हाट्स रिजल्ट जस्ट अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे कुछ लूज पुल थे, कुछ कमियां थी। अधिकारियों को ये विश्वास था, ऐसा उनकी आशा थी कि इस प्रक्रिया में छोटे किसान जो ह्यूमन है और जो भूस्वामी है, लैंड ओनर्स हैं, का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिनके पास कृषि में सुधार करने के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड्स में रिफॉर्म करने के लिए उनके पास अपनी पूंजी होगी और उनके पास कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दोनों होगी। लेकिन व्हाट यू हैव सीन हियर, व्हाई आई सजेस्ट यू टू वॉच द मूवी मदर इंडिया, बिकॉज what they think the Britishers just opposite happened on the ground level. They think that कि कैपेसिटी और कैपेबिलिटी छोटे किसानों की बढ़ जाएगी, बड़े किसानों की बढ़ जाएगी। लेकिन जस्ट अपोजिट क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट ये हो रहा है कि जो किसान थे छोटे छोटे, वो मनी लैंडर्स और बड़े बड़े जो ट्रेडर्स थे, जमींदार थे, साहूकार थे, उनके चंगुल में फंसते गए। उनसे ब्याज पे पैसे लेकर उन्होंने बीज बोया और प्रॉपरली वो बीज उनको टाइम पे न मिल सका, जिससे वो उनको दे ना सके, क्योंकि रेवेन्यू रेट उनकी बहुत ज्यादा थी जो जमींदार उनसे लेता था। इसलिए वो डे बाय डे कर्ज में डूबते चले गए। यहां पे ये उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन में जो पालन पोषण को प्रोत्साहन पाकर एक नया वर्ग क्रिएट होगा जमींदार का, जो हमेशा ब्रिटिश एम्पायर के लॉयल बना रहेगा। यस, ब्रिटिश सक्सेस इन दैट. Britishers, the permanent settlements, that was in favor of the Britishers. Why? One hand we have seen that the Britishers, the official rulers, they faced the problem of unpaid revenue. But second hand, they had what? A broad group of the loyal जमींदार्स. एक लॉयल जमींदारों का ग्रुप उनके सपोर्ट में खड़ा था. सपोर्ट ऑफ दैट ग्रुप्स, जमींदार जिनको जमीनें दी गई थी, प्रॉपर्टी राइट्स दी गई थी, वो उनके सपोर्ट में खड़ा था. लेकिन इन सारी चीजों के पीछे अगर इनका जो प्रॉब्लम है क्यों हुई, क्या कमी थी, क्या लूज पोल था, अगर इसे देखें आप तो आपको पता चलेगा कि ये समस्या का पता लगाने के लिए कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार कर सकते हैं, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. और फिर राज्य किसके साथ ये क्या करे, अपना कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करे. कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे थे, इन सब के बाद कंपनी डिसाइडेड, ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड कि हम ये जो बॉन्डिंग करेंगे प्रॉपर्टी राइट्स देने का, वो किसके साथ देंगे, जो छोटे छोटे राजा हैं, मनी लैंडर्स हैं, जो छोटे छोटे पीजेंट्स हैं, इट मीन्स जो लैंड ओनर्स, जो बड़े पीजेंट्स हैं, उन्हें जमींदार और जमींदारी का अधिकार दिया जाएगा. अधिकारियों के बीच ये परस्पर लंबे समय तक ये वाद विवाद बना रहा कि किसके साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी इन जमीनों को देने का. और कंपनी के अधिकारियों ने जब एक लंबी डिस्कशन किया तो उसको उन्होंने डिसाइड किया कि बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ जो परमानेंट सेटलमेंट्स हैं वो सेट किया जाएगा. परमानेंट सेटलमेंट्स तालुकदार और जो राजा हैं उनके साथ फिक्स होगा. अब यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमींदारों के रूप में वर्ग जो कैटेगराइज किया गया जमींदार के रूप में जिस ग्रुप को, ये ग्रुप हमेशा किंग के ब्रिटिश एम्पायर के प्रति लॉयल बना रहा. और साथ ही साथ जो जमींदार जो लॉयल्टी इनकी ब्रिटिश एम्पायर के प्रति थी, ये पीजेंट्स के प्रति काफी ब्रूटल स्टेप लेते थे रेवेन्यू कलेक्शंस में. यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात which I want to share with you, that the zamindars collected rent from the different village, paid the revenue to the company and retained the difference as his income. He was expected to pay the company regularly, filling which his estate could be auctioned. अगर ये व्यवस्था रखी गई कि कंपनी को वो पेड क्या करेंगे, देते रहेंगे, नहीं तो उनके जो जमींदारी है वो ऑक्शन कर दी जाएगी. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई वांट टू डिस्कस यू कि अब यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जमींदार को भले ही जमीन पे अधिकार दिया गया था, परंतु जमींदार
को प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी का मालिकाना हक, मीन्स वो जमीन का प्रॉपरली मालिक नहीं था, वो जमीन पे राजस्व वसूल करने का अधिकारी था। ये बात ब्रिटिश रूलर ने फिक्स की थी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। The problems, however, lay in the identify the individuals who could both improve agriculture and contract to pay the fixed revenue to the state. After a prolonged debate amongst company officials, the permanent settlements was made with the Rajas and Talukdar of Bengal. They were now classified as a Jamidar and they had to pay revenue as a demand that was fixed in perpetuity. In terms of this definition, the Jamidar was not a landowner in the village, but the revenue collector of the state. Jamidar was not a landowner. Jamidar was not a landowner, but what? But a revenue collector of the state. जमींदार जमीन का मालिक एक्चुअल में नहीं था, वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने का, राजस्व वसूल करने का अधिकारी था। राजा जो परिभाषा डिफिनेशन दी गई उसके अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं थे, बल्कि वो राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी राज्य का राजस्व कलेक्शन करने वाला एजेंट के रूप में काम करता था। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से व्यवस्था चेंज हो रही थी। जमींदार के नीचे अनेक गांव थे, कभी कभी 400 गांव तक जमींदारों की जमींदारी में आती थी। एक राजस्व संपदा रूप लेते थे। कंपनी संपदा जो कंपनी की जो प्रॉपर्टी थी पर कुल मांग फिक्स कर दी जाती थी। तदुपरांत जो जमींदार था उसको निर्धारित रेट पे रेवेन्यू देनी पड़ती थी। भिन्न भिन्न गांवों से वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था और नेशनल ट्रेजरी में जमा कर देता था। जमींदार जब ये काम करने में असमर्थ होता था तब जमींदार की जो जिम्मेदारी थी वो नीलाम कर दी जाती थी, ऑक्शन कर दी जाती थी। अगर देखें तो जमींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा, और अगर वैसा नहीं करता था तो जमींदार है फेस टू व्हाट द ऑक्शन प्रोसेस। मैंने आपसे कहा कि जो इट इज तो वेरी क्लियर, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड the rules that was fixed by the British East India Company. They fixed rule according to permanent settlements. If Jamidar was unable to pay revenue during annual date, if he was unable, then their Jamidari, then their state that was auctioned by British Empire. One thing. Second things, Jamidar was not a landowner in the village. He was only the revenue collector of the state. क्या था वो रेवेन्यू कलेक्टर स्टेट का था, ना कि वो जमीन का मालिक था। सेकेंड थिंग। थर्ड, इट वॉज एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑफिशियल्स दैट कि इफ वी गिव the property rights, the permanently property rights to the Jamidars, Jamidar invest so many equipments, resources in their farming land, and income increase day by day, production increase day by day, and that is in favor of the Britishers. It was thought by the British officials, but the actual condition on the ground level that has totally changed. ऐसा नहीं था, ये सब पूरी तरीके से बदल गया था. That was totally changed. That is the main reason. I hope you can understand. You have understand this topic, the problem of unpaid revenue. क्या थी problems unpaid revenue? Again I remind you, first the recurrent famine in 17 and 17, declining the agricultural outputs. The fixed rate was very high and the Jamidars, they were not taking interest. And
अदर पॉइंट्स इफ यू वांट टू व्हाट, अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं. जमींदार was not, जमींदार was क्या था? जमींदार जमीन का मालिक एक्चुअल नहीं था, केवल और केवल क्या था? वो रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ स्टेट के रूप में काम करता था. जमींदार वॉज नॉट लैंड ओनर्स ऑफ विलेज बट ओनली he was revenue collector. But strange matter that Jamidar treated himself as a what? The owner of whole villages, which was in the control of them. 400 villages, more than 400 villages एक जमींदार के अंडर में आते थे. ये पॉइंट्स थे, इनके आधार पे आप आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू. देन यू हैव टू राइट दैट पॉइंट्स एंड योर आंसर कैन कंप्लीट. नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स. योर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई जमींदार डिफॉल्टेड. व्हाई जमींदार डिफॉल्टेड on payment. Dear student, in this topic we are going to discuss कि राजस्व जो रेवेन्यू थी उसको पे करने के लिए प्रॉपर टाइम पे जमींदार क्यों चूक कर दिया करते थे, क्यों प्रॉपर टाइम पे रेवेन्यू पेड नहीं करते थे. वी विल रीड इन दिस टॉपिक. द कंपनी ऑफिशियल्स फेल्ट दैट फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड वुड गिव जमींदार अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड एश्योर्ड टू रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, encourage them to improve their estates. In the early decades, after the permanent settlements, however, Jamidar regularly failed to pay the revenue demand and unpaid balance accumulated. What was the reason behind that? कि कंपनी के अधिकारी ये सोचते थे कि राजस्व की मांग निर्धारित किए जाने से जो जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा, जमींदार अपने को सेफ महसूस करेंगे और वे अपने इन्वेस्टमेंट के आधार पे रिजल्ट अच्छा देंगे, कंपनी को प्रॉपर टाइम पे रेवेन्यू पे करेंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. एक तरफ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो सोच रहे थे कि जो जमींदार होगा वो जब राजस्व की रेट मतलब रेवेन्यू रेट फिक्स हो जाएगी तो जमींदार में सेफ्टी की भावना उत्पन्न होगी और वो अपने इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट के फलस्वरूप उससे प्रेरित होकर अपने इन्वेस्टमेंट करेगा एग्रीकल्चर लैंड में, फार्मिंग में, और प्रॉपर टाइम पे रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे करता रहेगा. लेकिन परमानेंट सेटलमेंट्स के अर्ली डिकेड्स में जमींदारों ने प्रॉपर टाइम पे रेवेन्यू पे नहीं किया. रेवेन्यू नेशनल ट्रेजरी में, राष्ट्रीय खजाने में जमा नहीं हुई. इसके पीछे कारण क्या थे? क्यों ये प्रॉपरली जो रेवेन्यू सबमिशन का काम था वो क्यों नहीं हो रहा था? इसके पीछे के रीजन क्या थे और फिर इसका फाइनली रिजल्ट क्या हुआ, क्या पड़ा प्रभाव गवर्नमेंट के खजाने के ऊपर? इट मीन्स आई मीन टू से दैट हियर आई वांट टू सजेस्ट यू दैट one side the government official think that if we will provide the जमींदार that कि आप इस जमीन के ओनरशिप हैं तो जमींदार इसके एवज में प्रॉपर्टी के लिए काम करेगा और फिर जमींदार अपनी जमीन अपने खेती के लिए प्रोत्साहित होकर के उत्साहित होकर
उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा और इन्वेस्टमेंट करके उसके अंदर एक तरीके से क्या सिक्योरिटी की भावना आ जाएगी कि लैंड हमारी है और हम प्रॉपर टाइम पे इस लैंड के थ्रू रेवेन्यू प्रॉपर पेड कर देंगे गवर्नमेंट को। लेकिन हम देखते हैं कि जब परमानेंट सेटलमेंट्स लागू कर दिया गया उसके बाद दशकों तक, शुरुआत के दशकों में बहुत सारे जमींदार ऐसे थे जिन्होंने प्रॉपर टाइम पे रेवेन्यू टैक्स पे नहीं की, वो प्रॉपर टाइम पे टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। उसके पीछे रीजन क्या थे? उसके पीछे कई सारे रीजन्स थे और इन रीजन्स को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। पहला रीजन था कि जमींदारों को इस असफलता के कई कारण थे। जमींदार प्रॉपर टाइम पे जो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। वाई? बिकॉज कि जमींदार व्हाट फेस द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, वो कई तरीके की समस्याओं से झेल रहे थे। फर्स्ट प्रॉब्लम थी द इनिशियल डिमांड वर वेरी हाई। What I discussed in my previous video, you will see. Then I have discussed that in this also, I am also explaining in the starting of this class that the initial rate of the revenue that was very high. It was fixed by the British government. This was because it was the felt that if the demand was fixed for all times to come, the company would never be able to claim a share of increased income from land. When the price rose, the cultivated expanded. To minimize this anticipated loss, the company paid the revenue. It means, first of all, here we want to understand that company one time fixed their revenue rate. Company felt that कि if you would क्या करेंगे, हम एक निश्चित राशि को अगर कम कीमत पे आज सेट कर देते हैं, इन फ्यूचर में यदि अनाजों के दाम बढ़ गए या जमींदारों को अधिक लाभ होने लगे तो हमें जो मिल रही है रेवेन्यू के रूप में जो इनकम, वो अपेक्षाकृत टाइम टू टाइम कम होती चली जाएगी। इन्वेस्टमेंट के थ्रू प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो जमींदारों की इनकम बढ़ जाएंगे और हमारी रेट कम हो जाएगी। इसलिए ब्रिटिशर्स इस बात को समझ के अपनी जो रेवेन्यू रेट थी, जो उनको फिक्स करना था, इनिशियल डिमांड्स दैट वर वेरी हाई, उन्होंने इसको वेरी हाई रेट पे फिक्स किया। ये एक सबसे बड़ी समस्या थी किनके लिए? जमींदारों के लिए। इसीलिए वो प्रॉपरली क्या कर रहे थे, अपनी चीज़ों को प्रॉपर टाइम पे जो रेवेन्यू थी उसको, जो इनकम थी उसको फिक्स नहीं कर पा रहे थे, टाइम पे उसको सबमिट नहीं कर पा रहे थे, जमा नहीं कर पा रहे थे। ये सबसे बड़ा कारण था। डिमांड हाई, द आर्ग्यूइंग दैट द बर्डन ऑफ जमींदार वुड ग्रेजुअली डिक्लाइन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सपेंडेड एंड प्राइस रोज। और कभी कभी ऐसा होता था कि जमींदारों की सफलता का जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि जो ऊंची रेट पर जो रेवेन्यू रेट फिक्स की गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ऐसा महसूस करते थे कि यदि मांग आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा था और आने वाले समय में यदि मांग क्या होगी, इनकम की रेट, जमींदार की इनकम की रेट मतलब प्रॉफिट, वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो फायदा जमींदार को ज़्यादा मिलेगा। आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से जो इनकम में जमींदार की वृद्धि होगी, इस पर कंपनी अब उनके इस जो इनकम जो डेवलप जो इंक्रीज करेगी उस पर कंपनी कोई दावा नहीं कर सकेगी। इसीलिए कंपनी ने फिक्स रेट को बढ़ा के रखा। इस जो प्रत्याशित हानि को कम करने के लिए उन कंपनी ने ऐसे स्टेप उठाए। परंतु क्या हुआ? परंतु ये दलील, जो ये बातें कही जा रही थी ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा, वो सही नहीं हुई। हमने देखा कि अगर आप मिनटली ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि जो रेट थी वो धीरे धीरे वस्तुओं की क्या होने लगी, कम होने लगी। हमने कहा, एक वर्ड मैंने कहा था कि बंगाल में फेमाइन आई, डिक्लाइनिंग हुआ एग्रीकल्चर आउटपुट्स में, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली तरीके से न होने के कारण डे बाय डे प्रोडक्टिविटी रेट घटने लगी, कम होने लगी। और जो जो कृषि का उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी तो कीमत बढ़ेगी, लेकिन जस्ट अपोजिट वस्तुओं के उपज में वृद्धि नहीं हुई, फर्टिलिटी रेट घट गई और इसलिए जमींदार प्रॉपर टाइम पे टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे। सेकेंड रीजन,
जो सेकेंड रीजन्स थी वो थी जो ऊंची मांग 1719 की डिकेट्स में लागू हो गई थी, जब कृषि की कीमतें नीची थी, जब रेट तब फिक्स किया गया था जब वस्तु इट मीन्स जो एग्रीकल्चर गुड्स थे उनकी कीमत कम थी, जिसमें जो किसान थे, किसानों के लिए जमींदारों को उनकी देय राशियां चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर पा रहा था तो वह कंपनी को अपने निर्धारित राशि समय पे कैसे अदा कर सकता था। सपोज व्हाट आई एम टेलिंग, इन 1775 द रेवेन्यू रेट दैट वाज फिक्स्ड ऑफ 5 lakh, that was very high, very high, and during that time the low price of agriculture goods, एग्रीकल्चर गुड्स की कीमत कम और लो प्राइस, एग्रीकल्चर गुड्स की कीमत कम और जो फिक्स रेट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो ज्यादा। अब वस्तुओं की कीमत कम थी, पीजेंट्स क्या करेगा, पीजेंट्स अपने एग्रीकल्चर गुड्स को बेचेगा, सेल मार्केट में। यदि इसके दौरान इनकी कीमत कम है तो खुद किसान को क्या मिलेगा, कम कीमत मिलेगी, और फिर वो कम कीमत मिलेगी तो जमींदार को ऊंची रेट पे कैसे देगा। और जमींदार यहाँ पे जब वस्तुओं की कीमत कम है, जब वस्तुओं की प्राइस कम है, एक्चुअल प्राइस मार्केट में कम है और रेट ज्यादा है, तो जमींदार खुद कैसे इन चीजों को पे कर सकता था। ये सेकेंड प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी, इसको समझना चाहे तो कहता है कि सेकेंड, this high demand was imposed in the 1719, the time when the price was agriculture produce were depressed, making it difficult for the raiats to pay their dues to jamidar. If the jamidar could not collect their rent, how could he pay the company? That is the main problem. तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि जब जमींदार ही किसान से वस्तुएं नहीं ले पा रहा है तो कैसे वो पे करेगा, हाउ कैन ही पे, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई व्हाट जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। थर्ड रीजन आल्सो important, you have seen third reason. If you read your book you can easily understand about third reason. We will discuss third problem in your next video. आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।